अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। खलील अरसे में तेलंगाना की तरक्की मुल्क भर की दीगर रियासतों के लिए मिसाल। रियासती वजीर KTR ने महकमे सनत की सालाना रिपोर्ट जारी की। हजरत ख्वाजा अजमेरी की शान में गुस्ताखी करने वाले रुकन असम्बली गोशा महल राजा सिंह के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सूफी सजादा नशीन कौंसिल ने DCP साउथ से मुलाकात करते हुए शिकायत दर्ज करवाई। मजलिसी अराकीन असम्बली मुतालिका हल्कों में हुकूमती प्रोग्राम पटना प्रगति में मसरूफ। डिवीजन की साफ सफाई और तरक्याती कामों की तकमील के लिए खुसूसी मुहिम। सरखे और रहजनी की वारदातों में मुलविस मुलजिमीन गिरफ्तार। रच्चाकुंडा पुलिस की कार्रवाई। कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा की मीडिया कॉन्फ्रेंस। अब खबरें तफसील से। वज़ीर IT व सनत KT रामाराव ने साल 2021-22 की सालाना सनती रिपोर्ट पेश करते हुए बताया कि सनती शोबे में नई रियासत तेलंगाना ने सिर्फ 8 साल के खलील अरसे में कई एक मंजिलें तय की हैं। उन्होंने मरकज़ी हुकूमत पर तनकीद करते हुए बताया कि अगर मुल्क को दुनिया के सफ़े अव्वल के ममालिक में शामिल करना हो तो मरकज़ को चाहिए कि वो सियासी बालादस्ती से हट कर रियासतों की हिम्मत अफजाई करे। उन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत ने तेलंगाना में 6 राहदारियों के क़याम के लिए तजावीज़ पेश की थी, लेकिन मरकज़ ने इस सिलसिले में कोई जवाब नहीं दिया। KTR ने बताया कि अब तक 16,48,000 मुलाज़िमीन को रास्त और बिल रास्त तौर पर नौकरियां फराहम की गई हैं। Be practiced by individuals as well. That is exactly what Telangana has done. We have disrupted our policy. When this government came in 2014, our Honorable Chief Minister, in a similar room like this, held a marathon 7-hour session with various industry bodies, the CII, the FICCI, the FITAPSI, the DICCI, and many others, HICIA, NASSCOM, many others. He sat with them for over 7 hours. He discussed threadbare with his entire team of officers. I think this was in 2014, June or July, right after the state was formed. He sat for 7 hours. He sat and he didn't speak much. He actually heard more. He actually was getting the feedback from the industry. He kept asking them, probing them, what is it that you need? What is it that you need to make it work, to make Telangana a safe haven, an investment magnet, etc., etc. And whatever you have said that day, he has taken it in letter and spirit, imbibed it, and has come out with one of the best policies, best innovations that he could have in the form of TSI Pass. Now, when I go out to any country, to any state, to any city, and when I speak about TSI Pass, not only does my heart swell with वज़ीर फ़ाइनेंस व सेहत हरीश राव ने नारायणपेट का दौरा करते हुए वहां पर नारायणपेट तक कर्नाटक की सरहद तक 5.8 किलोमीटर BT रोड के अलावा दीगर तरक्याती प्रोग्रामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर रियासती वज़ीर श्रीनिवास गौड़, TRS रुकन पार्लियामेंट प्रभाकर के अलावा दीगर भी मौजूद थे। हरीश राव और श्रीनिवास गौड़ ने खिताब करते हुए बताया कि नारायणपेट में न सिर्फ सरकारी दवाखाने का क़याम अमल में आया है, बल्कि यहाँ पर मेडिकल कॉलेज भी कायम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव नारायणपेट को हैदराबाद की तर्ज पर तरक्की देने के इक़दाम कर रहे हैं। ఏ ముఖం పెట్టుకొని మీరు వడ్ల కుప్పల కాడికి వడ్ల కొనుగోలు కేంద్రాల కాడికి తిరుగుతున్నారు? మరి పక్కన ఎందుకు కర్ణాటకలో కొంటలేరో సమాధానం చెప్పాలని నేను బీజేపీ నాయకులను ఈ సభ నుంచి అడుగుతా ఉన్నా. అంటే వాళ్ళన్నీ అబద్ధాలు, ఉత్త తొండి మాటలు. వడ్లు కొనరు, కరెంట్ ఇయ్యరు, ప్రాజెక్టులు కట్టరు, మంచినీళ్ళు రావు. ఎక్కడన్నా వచ్చినాయా మంచినీళ్ళు? ఏ ముఖం పెట్టుకొని వస్తావు నాయన? కర్ణాటకలో ఇస్తావు, ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇస్తావు, మధ్యప్రదేశ్లో ఇస్తావు, మా తెలంగాణకు ఎందుకు మొండి చేయి చూపుతావు? మా పాలమూరుకు ఎందుకు జాతీయ హోదా ఇయ్యవు? ఇదే మోడీ గారు చెప్పలే? 2014లో పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో మరి మహబూబ్ నగర్లో మాట్లాడినప్పుడు ఏమన్నాడు? సోనియా గాంధీ, రాహుల్ గాంధీ నిద్రపోయినరు, మేం గెలిస్తే పాలమూరు కట్టిస్తా అన్నాడు. గెలిచి 8 ఏళ్లైంది.
ఒక్క రూపాయన్ని ఇచ్చినవా? ఎందుకు జాతీయ హోదా ఇయ్యవు? ఇయ్యకుండా నీకు మాట్లాడే హక్కు ఎక్కడిది అని నేను ఈరోజు బీజేపీ నాయకులను, ప్రధానమంత్రి గారిని నేను అడుగుతా ఉన్నా. ఎవరో నలుగురు బీజేపీ సర్పంచ్లను, నలుగురు కాంగ్రెస్ పార్టీ సర్పంచ్లను పట్టుకొని మీరు దొంగ నాటకాలు ఆడితే నమ్మరు ప్రజలు. तेलंगाना तहजीब पर मुबनी बोनाल त्यौहार के इंतजामात के सिलसिले में MCHRD में एक इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें रियासती वज़रा इंदिरा किरण रेड्डी, टी श्रीनिवास यादव, ग्रेटर हैदराबाद मेयर विजय लक्ष्मी, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार और DGP महेंद्र रेड्डी के अलावा दीगर महकमे जात के अहदेदारों ने शिरकत की। बाद अज़ां रियासती वज़रा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि जारिया साल बोनाल त्यौहार का बड़े पैमाने पर इनेकाद अमल में आएगा। इस सिलसिले में तमाम महकमे जात के अहदेदारों को बेहतर से बेहतर इंतजाम करने की हिदायत दी गई है। श्रीनिवास यादव ने बताया कि पुराने शहर में 2 रोज़ा बोनाल त्यौहार का 24 जुलाई से इनेकाद अमल में आएगा। పర్మిషన్స్ ఇవ్వమని కానీ లేకపోతే ఇగ్నోర్ చేయడం కానీ మీతో ర్యాష్గా బిహేవియర్ చేయడం కానీ ఇటువంటి ఏం ఉండవు. కాబట్టి అందరం చూస్తున్నారు. మీరు తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఎంతో గొప్పగా ఘనంగా జరుగుతున్నటువంటి పండుగలు. మరి ఇక్కడ సికింద్రాబాద్ ఉజ్జయిని మహాకాళి దేవస్థానంలో బోనాల బంగారు బోనం ఊరేగింపు జరుగుతుంది, ఉమ్మడి దేవాలయంలో జరుగుతుంది, గోల్కొండలో జరుగుతుంది. మీకు ప్రభుత్వం ద్వారా కావాల్సినటువంటి సకల సౌకర్యాలు మీరు తీసుకోండి. పండుగ కూడా అంతే గొప్పగా జరగాలి. అన్నిటికంటే ప్రధానమైనది మీ చెక్కులు కూడా ఒక వారం రోజుల ముందే మీకు చెక్కులు అందజేస్తాం. మీకు ఏ ఇబ్బందులు లేకుండా చేస్తాం. అంటే మా దేవుడు మంత్రి గారి చేతిలోనే ఉంది కాబట్టి బ్రహ్మాండమైనటువంటి ఏనుగుడి గతంలో మీకు తెచ్చి ఇచ్చాం. రెండోది అది యథావిధిగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే గతంలో మేము చేసినాం, మేము తిరిగినాం, ఆ ప్రాబ్లం చెప్పారు. బట్ ఇప్పుడు ఏంటంటే ప్రభుత్వం అన్ని సమకూరుస్తుంది. మీకు మీ దేవాలయానికి సంబంధించినటువంటి లైటింగ్ కానీ, అదేవిధంగా మీకు ఫ్లవర్ డెకరేషన్ కానీ, పెయింటింగ్ కానీ, మీ ఊరేగింపులు. वज़ीर पंचायत राज ई दया कराव की जानिब से पल्ले प्रगति प्रोग्राम में शिरकत के दौरान कांग्रेस के सरपंच ने ई दया कराव का घेराव किया और ग्राम पंचायत में फंड्स जारी करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया गया। ई दया कराव ने बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पल्ले प्रगति प्रोग्राम के तहत तमाम ग्राम पंचायत को फ़रोग़ देने के इक़दाम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत को फंड्स जारी करने की जिम्मेदार मरकज़ी हुकूमत है। तेलंगाना कांग्रेस किसान मोर्चे की जानिब से किसानों के मसाइल को लेकर एक रैली गांधी भवन तक गन पार्क तक निकाली गई और TRS हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। किसान मोर्चा कायदीन ने रैतु बंधु रैतु बीमा स्कीमात में होने वाली बदउनवानियों की तहक़ीक़ात का मुतालबा करते हुए बताया कि रियासती हुकूमत रैतु बंधु स्कीम के तहत किसानों के अकाउंट में रकम जमा नहीं कर रही है। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला की निगरानी में पीर को मना बस्ती मनावडी प्रोग्राम के सिलसिले में गवर्नमेंट सिटी मॉडल स्कूल चादर घाट में इजलास मुनक़िद हुआ। इस मौके पर रुकन असम्बली अहमद बलाला ने बताया कि 1,70,00,000 रुपये के मुख्तलिफ काम मंजूर हुए हैं, जिसके तहत मरम्मती काम, पानी के मसाइल और बैतुल खलाओं के अलावा दीगर काम अंजाम दिए जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर रोहनी ने बताया कि पहले मरहले के तहत शहर में 239
स्कूल्स के लिए बजट मंजूर हुआ है। पीर को हुए इजलास में मलकपेट में स्कूल में हो रहे कामों पर तबादला ख्याल किया गया। मलकपेट में रुकन असम्बली की निगरानी में 19 के मंजुमला 11 काम शुरू हो चुके हैं, जबकि माबकी 8 स्कूल्स में 1 या 2 दिन में काम शुरू किया जाएगा। इजलास में मलकपेट के सरकारी स्कूल्स और कॉलेजेस के ज़िम्मेदारों के अलावा महकमे तालीम के ओहदेदार और मजलिसी कॉरपोरेटर्स मिनहाजुद्दीन अब्दुल सलाम शाहिद और नुमाइंदा कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफी भी मौजूद थे। मैं आप तमाम को यही कहूँगा कि गवर्नमेंट आज तक जिस तरीके से मैडम ने कहा, आज तक इतने बड़े पैमाने के ऊपर स्कूल के अंदर रिपेयर्स और स्कूल के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए ये पहली बार आया है काम। और इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए आप लोग जिस पर्सनल इसके अंदर इंटरेस्ट लेते हुए इस कामों को अच्छे तरीके से कराएं, ताकि आपके स्कूल्स और वहाँ के बच्चों को इसके सही फ़ायदा हो सके, इस्तेफादा उठा सके। और GHMC डिपार्टमेंट को भी मैं ये कहना चाहूँगा कि जुमला मलकपेट के अंदर 1,71,00,000 रुपए के काम हैं। आपसे मैं स्ट्रिक्टली कहूँगा कि ये जून 30 तक ये पूरे काम पूरे स्कूल्स के कंप्लीट हो जाना चाहिए। आप कैसा करते क्या करते नहीं मालूम, क्वालिटी ऑफ रिपेयर्स, क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन, और 30 तारीख तक 30 जून तक पूरे स्कूल्स के काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। और जहां पर इलेक्ट्रिकल रिपेयर्स है, आप प्लीज क्वालिटी के ऊपर मेंटेन करिए। आप फैंस है तो आप जो है ना, आप ब्रांडेड फैन डालना। एक फैन 400 रुपए में भी आता, 1400 रुपए में भी आता, तो आप ब्रांडेड फैंस लगाइए ताकि इट शुड लास्ट लॉन्ग एंड इट शुड बी इफेक्टिव। तो ये खास चीज़ों के ऊपर अगर से इसके अंदर अगर से वर्क इम्प्लीमेंटेशन एजेंसीज अगर से इसको नज़रअंदाज करेंगे तो उसका किमियाजा उनको भुगतना पड़ेगा, ना कि स्टाफ को। यू आर द लेमेंस, दे आर नॉट द लेमेंस। दे विल, ये लोग का काम है कि कहेंगे कि क्या ज़रूरत है, क्या काम है, उसको क्वालिटी वाइज आपको इम्प्लीमेंट करना आपकी जिम्मेदारी है। क्वालिटी, यू शुड इंश्योर द क्वालिटी। गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रही है, हमको चाहिए कि वो पैसे का सही इस्तेमाल हो और उसका इस्तेफादा डायरेक्ट बच्चों को, उनके पेरेंट्स को डायरेक्ट उसका इस्तेफादा, उसका फ़ायदा मिले। रुकन असम्बली हल्के याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा क़ादरी ने रैन बाज़ार डिवीज़न में नालों के तोसी कामों का जायज़ा लिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली ने बताया कि नाले की तोसी और इसकी सफाई के मुसलसिल काम जारी हैं। नालों की तोसी के लिए दरकार अराज़ी हसूल का भी तकरीबन मरहला मुकम्मल हो चुका है। उन्होंने बताया कि अराज़ी हसूल के लिए चेक्स की इजराई भी अमल में आ चुकी और काम भी बिला खलल जारी है। रुकन असम्बली ने बताया कि रिटर्निंग वॉल की तकमील के बाद नाले की सफाई का काम होगा और उन्होंने ये भी कहा कि नाले की तोसी के काम से मुकामी आवाम में भी मसरत पाई जाती है। याकुतपुरे के तमाम नालों के तोसी और उसकी सफाई के लिए भी मुसलसिल काम जारी हैं। इस मौके पर मुतालिका कॉरपोरेटर वासिउद्दीन भी मौजूद थे। याकुतपुरा असेंबली हल्के के बल्दी डिवीज़न रैन बाज़ार इलाके में यहाँ पर नालों की वाइंडिंग का काम, डिसिल्टिंग का काम, रिटर्निंग वाल का काम चल रहा है। यहाँ पर तकरीबन 36 मकानों को अब तक डिमॉलिश किया गया, मुनहदम किया गया। अब एक 2-3 बचे हुए हैं, उसका भी काम जारी है। नक़ीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट ने हिदायत दी कि आप बैठ के बता देखो ये तमाम मकानात को मुनज़्ज़म कराना जो हदूद नाले में, जो नाले के हदूद में है। बहरहाल नाले से 10 फीट के फासले पर तमाम लोगों के मकानात के जो मुनज़्ज़म करने के नोटिस दिए थे उनको चकान दे दिए और अल्लाह के फजल से काम में कोई रुकावट नहीं है, काम सुकून से चल रहा है। यहाँ पर भी जितने 2-3 मकान बचे हुए उसकी भी 1-2 रोज़ में मुकम्मल हो जाएंगी।
नाले का काम भी रिटर्निंग वाल का जारी है। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से शुरू किया गया प्रोग्राम पटना प्रगति शहर के मुख्तलिफ हलकों में जारी है। इस प्रोग्राम के तहत हल्के असम्बली चार मीनार के मुख्तलिफ डिवीजन्स में इस्तेमाल की जाने वाली गाड़ियों को मजलिस रुकन असम्बली हल्के चार मीनार मुमताज़ अहमद खान ने झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर GHMC के अहदेदार भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि मज़कूरा प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ डिवीजन्स में साफ़ सफाई को यकीनी बनाया जा रहा है। ऑल इंडिया सूफ़ी सजादा नशीन कौंसिल के एक वफद ने क़ायद अहल सुन्नत मौलाना मुर्तज़ा पाशा की क़यादत में DCP साउथ जोन से मुलाकात करते हुए एक शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत में मुतालबा किया गया है कि BJP रुकन असम्बली गोशा महर राजा सिंह को गिरफ्तार किया जाए और क़ानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए, क्योंकि राजा सिंह ने हज़रत ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखी कलमात का इस्तेमाल करते हुए करोड़ों मुसलमानों को ठेस पहुँचाई है और उनकी दिल आज़ारी की है। आज हम साउथ जोन DCP ऑफिस आए हैं और राजा सिंह जो गोशा महल MLA है इसके खिलाफ कंप्लेंट दिए हैं, इसलिए कि वो सरकार गरीब नवाज की शान में बड़ा बेहुदा अंदाज से गुफ्तगू किया है, जिसकी वो तरबियत है जिस अंदाज की, उसी अंदाज से उसने बात की है। उस बेहुदे इंसान को ये नहीं मालूम कि सरकार गरीब नवाज, अरे तू सस्ती शोहरत का तलबगार है, तू चाहता ये है कि तेरी मकबूलियत हो, तो तू सरकार गरीब नवाज की बारगाह में जा, सजदा रेजी कर, वहाँ पर चादर पेश कर, उनसे मन्नत मान, तेरी मुराद पूरी हो सकती थी। नादान तूने तो इतनी बेहुदा अंदाज से गुफ्तगू किया सरकार गरीब नवाज की शान में, जहाँ पर 140 करोड़ हिंदुस्तानी वहाँ पर हाजिर भी होते हैं, वहाँ पर चादर भी चढ़ाते हैं, जिनकी अकीदतें गरीब नवाज की बारगाह से वाबस्ता है। उस बारगाह की शान में उस अजीम शख्सियत सरकार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखी करता है। तो क्या समझता है कि हाफिज साहब को तुझ जैसी गुफ्तगू करना नहीं आता? तुझसे ज्यादा सख्त लहजे में बात कर सकते हैं। तू जितना बोलेगा तुझसे 1000 गुना ज्यादा हमारे बच्चे तुझे जवाब दे सकते हैं। बड़े तो बड़े हैं, बच्चे जवाब देंगे, लेकिन हम खामोश है, जानते हैं तेरा मंसूबा क्या है। तू सस्ती शोहरत का तलबगार है, इसलिए तड़प रहा है कि कुछ ना कुछ किसी ना किसी अंदाज से मैं मीडिया के दरमियान में आऊं, लोगों के दरमियान में आऊं, और कुछ लोग जो सरफिरे नौजवान बच्चे हैं वो लोग मेरी तायद करें। तेरी इस गुफ्तगू से तेरी कोई तायद करने वाला नहीं है, बल्कि तेरी अपनी कौम तुझ पर थूक रही है कि तूने किस सूफी संत के बारे में इतनी बड़ी बेहुदा गुस्ताखी की है। तू तारीख से वाकिफ नहीं है, तू शख्सियतों से वाकिफ नहीं है। पहले तू गरीब नवाज की तारीख पढ़, तुझे मालूम होगा कि तू खुद दौड़ा दौड़ा वहां जाके बारगाह में सर झुकाएगा। नादान, मैं ये तमाम हजरात यहाँ मौजूद है, ये तमाम हजरात भी अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। हमें शदीद तकलीफ है, लेकिन DCP साहब साउथ जोन ने हमको तयक्कुद दिया है, इसलिए हम पहला स्टेप ये लिए हैं कि यहाँ आकर तेरे खिलाफ कंप्लेंट दिए हैं, और BJP हाई कमांड जैसे वो खातून को डिसमिस करे हैं, इसको भी चाहिए कि सस्पेंड कर दें, बुनियादी तौर पर इसको खारिज करें, एक बेहतर नुमाइंदे को आप लाएं। क्योंकि आप लोग जो गुफ्तगू कर रहे हैं, जो आपकी लीगल सेल जो बोल रही है कि हम हर मुअज़्ज़िज़ फर्द का, मुक़ामात मुक़द्दसा का एहतराम करते हैं, तमाम मज़ाहिब का एहतराम करते हैं, ये BJP की लीगल सेल ये बात बता रही है। और इस बेवकूफ़ को मालूम नहीं क्या हुआ कि वहीं पड़ा हुआ है और इस किस्म की गुफ्तगू करता चले जा रहा। आए दिन किसी ना किसी के बारे में बोलने की तेरे को
आदत हो गई, नेगेटिव पब्लिसिटी चाहता है तू, लेकिन आज तेरी जबान इतनी बड़ी हो गई कि सरकार गरीब नवाज के शान में बोल रहा है। तुझे मालूम नहीं, हम कोई पॉलिटिशियन से नहीं है, लेकिन सरकार गरीब नवाज के बारे में अगर बात करेंगे तो तुझे सही लोगों से साबिका पड़ेगा, पॉलिटिशियन से नहीं। हम वो लोग हैं जो गरीब नवाज के नाम लेवा है, हमारी अकीदतें उनसे वाबस्ता है। तुझको मैं चेतावनी देता हूं कि समझ जा, सुधर जा, अपनी जबान को वापस ले, अपने अल्फाज को वापस ले, जल्द से जल्द तौबा कर ले, तेरी आफियत इसी में है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जुबली हिल्स पब केस के सिलसिले में बीजेपी और इसकी झेली तंजीमें शदीद एहतजाज कर रही हैं। इस सिलसिले के तहत BJYM ने जुबली हिल्स चेक पोस्ट और सईदाबाद में वाक़ धोबी घाट पर अपना शदीद एहतजाज दर्ज करवाया। एहतजाजियों ने मुतालबा किया कि कमसीन लड़की की इस्मत रेज में मुलविस मुलज़िमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सईदाबाद धोबी घाट में वज़ीर आला KCR का अलामती पुतला नजरियातिश किया गया, तहम इस दौरान एक कारकुन का हाथ भी झुलस गया। इतला मिलते ही पुलिस मुकाम वाक़े पर पहुंची और हालात को काबू में किया। తలగబడుతున్నాడు సాయి గారు తలగబడిపోతుండే तेलंगाना कांग्रेस और YSRCP कांग्रेस की अक़लियती कायदीन ने हज हाउस पहुँच कर अपना एहतजाज दर्ज करवाया और चेयरमैन रियासती वक्फ बोर्ड मोहम्मद मसीउल्लाह खान को बरतरफ करने का मुतालबा किया। एहतजाजी कायदीन ने हज हाउस पर धरना मुनज़्ज़म करते हुए तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा किया कि जुबली हिल्स पब केस में चेयरमैन वक्फ बोर्ड मोहम्मद मसीउल्लाह के फर्जंद मुलजिम है और मसीउल्लाह की गाड़ी का इस वाक़े में इस्तेमाल हुआ है। अखलाक़ी तौर पर मसीउल्लाह को इस्तीफ़ा देना चाहिए, बस सूरत दीगर हुकूमत को चाहिए कि उन्हें बरतरफ करे। मेडशल हाईवे पर पेश आए सड़क हादसे में मलकाजगिरी का साकिन बाला सुब्रमण्यम बरसर मौका फौत हो गया। अगबी हिस्से से आने वाली लॉरी ने टक्कर दी, जिसके बाद मज़कूरा शख्स हलाक हो गया। इत्तला मिलते ही पुलिस मुकाम हादसे पर पहुंची और नाश को बगैर से पोस्टमार्टम रवाना करने के बाद एक केस भी दर्ज किया गया।
रहमतनगर डिवीज़न के इलाके सुभाष चंद्र नगर में एक शौहर ने अपनी बीवी का कत्ल करने के बाद उसकी नाश को ड्रम में छुपा दिया। तफसीलात के मुताबिक अनिल कुमार और सरोजा के दरमियान मोहब्बत की शादी हुई थी, ताहम पिछले कुछ दिन से दोनों के दरमियान बहस व तकरार जारी थी। सरोजा अपने मायके चली गई थी, ताहम मनसूबाबंद तरीके से अनिल ने उसे अपने घर लाकर उसका कत्ल कर दिया और नाश को छुपा दिया। सरोजा के वालिद को शुबा होने पर उसने नाश को ढूंढा और पुलिस को मुतल्ला किया। इतला मिलते ही जुबली हिल्स पुलिस मुकाम वाक़े पर पहुंची और सिलसिले में केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ किया गया। ఎవరు చేసిండు మరి ఎవరు చేసిండు ఎప్పుడు మిస్ అయింది మేము మీరేమిద్దరమ్మా లోపలికి ఎందుకంటే మాకు వాళ్ళకి ఎట్లా డౌట్ వచ్చిందంటే ఇంకో సైడ్ బాత్రూమ్ టేబుల్ ఫ్యాన్ ఉంటుంది కదా, అది పెట్టి గాలి బయటికి వెళ్ళేటట్టు పెట్టాడు అనమాట. మళ్ళీ లోపలికి వెళ్ళిన వాళ్ళకు స్మెల్ రాకుండా వచ్చిన किशनबाग में वाक़ एक होटल के करीब 18 साल नौजवान पर हमला करते हुए उसे कत्ल कर दिया गया। 18 साल अरशद पर डिज्नीलैंड होटल के करीब चाकू से हमला किया गया और वहीं ढेर हो गया। बहादुरपुरा पुलिस ने इत्तला मिलते ही मुकाम वाक़े का मुआयना किया और इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ किया। मक़तूल अरशद के वालिद ने मीडिया को इस सिलसिले में तफसील बताई। क्या नाम है आपके बच्चे का? अर्शद है, एक बच्चा मेरा। क्या नाम है? अर्शद। मोहम्मद अर्शद। उम्र क्या है? 16-17 की। क्या काम करते थे लोग? मैं कामों पे नहीं जाना बोला, भाई घर पे बैठो बोला, तो क्या होना बोल बैठे वो तो बोला। मेरे से पहले मेरी जोरों को दुनिया का करती मेरी को। कौन मारे कुछ मालूम है आपको? नहीं, वो आए थे पोटे भाई, इनके मैं देखा भाई। उनकी दुश्मनी थी क्या उनकी? 4-8 दिन पहले कुछ लड़े गए थे लोग। कहाँ पे लड़े? वो बुट्टों से। नाम आप मालूम है आपको? नहीं मालूम। कहाँ रहते आप लोग? कहाँ रहते? मैं सौदाबानगढ़ में। कुछ पुरानी दुश्मनी थी क्या? नहीं, पुरानी नहीं, वही 4-8 दिन पहले क्या कि मारा गए थे। वो उन्हें 8-10 जनों को लेके आके हमला कर दिया। कौन मारा? कुछ नाम याद है आपको इसका? नहीं मालूम भाई मेरे को। मैं भाई है देखो, मैं सुबह निकला गाड़ी को तो शाम में जाता हूँ घर को। मैं सुबह निकला तो शाम में जाता हूँ मैं घर को। ऐसा एक ही बच्चा है मेरे को, अब उसको मार दिया तो मैं किसको देख के करूँ? फरवरी 2022 में गोलकुंडे के सोशल वर्कर्स पर मुश्तमिल टीम की जानिब से सरकारी दवाखानों में मरीजों और तीमारदारों को रात के औकात में मुफ्त खाना खिलाने के अमल के 100 दिन की तकमील पर एक प्रोग्राम मस्जिद क़मरुज़्ज़मा वाक़े सालेह नगर छोटा बाज़ार गोलकुंडे में मुनक़िद किया गया। इस प्रोग्राम में मौलाना फसीउद्दीन नदवी जनरल सेक्रेटरी सफ़ा बैतुलमान ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और ख़िताब भी किया। इस प्रोग्राम में तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट मोर्चे के सदर एम लक्ष्मण के अलावा एडवोकेट मोहम्मद अफजल व दीगर भी मौजूद थे, जिन्होंने खिताब किया। जनरल सेक्रेटरी मस्जिद कमेटी सैयद याकूब, डॉक्टर अजीम सिद्दीकी, मिर्ज़ा अहमद बेग के अलावा बशीरुद्दीन गवर्नमेंट स्कूल हेडमास्टर भी मौजूद थे। सिद्दीक बिन हुसैन सोशल वर्कर व सदर कमेटी की निगरानी में मज़कूरा काम किया जा रहा है। The friends and brothers of Hyderabad Dakkan have once again proven that the Ganga Jamna Tehzeeb, coexistence of amongst communities and people of different religion, caste and creed is a remarkable and a magical moment which will be cherished by the citizens of the state and country for ever and ever. Thus, this noble cause of feeding the poor people at government hospitals has been concluded for 100 days and still an ongoing event. The active social leader, Mr. Siddiq bin Hussain Fahad, and his team
Mr. Bashiruddin Saab, Headmaster Government School, Hyderabad, and many other noted eminent contributions social workers have joined hand to give financial and physical aid of providing free meals at dinner time at government hospitals with great care and concern. This service is been given irrespective of any caste or creed of Hindu, Muslim, Sikh, Isai. वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। एक तरफ जहां बीजेपी के साबिक़ कौमी तर्जुमान नूपुर शर्मा की तरफ से शान रिसालत में गुस्ताखी की गई, अब वहीं हैदराबाद गोशा महल के बीजेपी रुकन असम्बली की जानिब से हज़रत ख्वाजा अजमेरी की शान में गुस्ताखाना कलमात अदा किए गए। जैसे ही बीजेपी रुकन असम्बली के गुस्ताखाना कलमात का वीडियो फैलने लगा, बहादुरपुरा में मुकामी अवाम की बड़ी तादाद जमा हो गई और राजा सिंह के रिमार्क के ख़िलाफ़ एहतजाज किया गया। मुकामी मुसलमानों ने बीजेपी रुकन असम्बली के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार करने का भी मुतालबा किया। जो हज़रत सैयदना पिरान हज़रत ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती हसन चंदेरी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में जो बेअदबी किया है जलील, ये सुनने के बाद ये हमारी ये ज़मीर इतना हमारी रूह इतनी काबी कि देखने के बाद या अल्लाह ताला राजा सिंह को नस्ल नाबूद करे। राजा सिंह ने जो हज़रत गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की शान में बेअदबी की है, अल्लाह उससे गारत करे। तुम्हें मालूम है राजा सिंह ये बादशाह किससे मिलती है? हिंदुस्तान के बड़े बड़े बादशाहों ने गरीब नवाज की चौखट पर सर झुकाया है, वो झुकाने के बाद ही मिलती है। यहाँ से नीचे से लेके ऊपर तक तुम देखो राजा सिंह, तुमने जो गुस्ताखी की है, तुम्हारा हशर इस्ता बुरा आलम होगा, तुम्हारे कीड़े पड़ेंगे, गलीज कीड़े पड़ेंगे, दुनिया तुम्हारे ऐसे इबरतनाक होगी। याद रखो जालिम राजा सिंह, तुम क्या हो, तुम्हारी हकीकत क्या है? हद गरीब नवाज की शान में तुमने बेदबी की है, तुम्हारा ऐसा। नाचारम पुलिस ने CCS मलकाजगिरी टीम के इश्तराक से मकानात से सरखा करने वाले मुलजिम को हिरासत में लिया और इसके कब्ज़े से 53.9 तोले तिलाई जेवर के अलावा दीगर अशिया बशमुल नगद रकम जुमला मालियती 30,75,380 रुपये बरामद किए गए। कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा महेश भागवत ने बताया कि 28 साला अरुण कुमार साकिन नाचारम उप्पल को हिरासत में लिया गया। मुलजिम ने 27 मई की रात सरखे की वारदात अंजाम दी थी। अलावाजी भुवनगिर पुलिस CCS टीम ने सरखे और रहजनी की वारदात में मुलविस 3 मुलजिमीन को भी हिरासत में लिया और उनके कब्ज़े से 44.5 तोले तिलाई जेवर के अलावा दीगर अशिया जुमला मालियती 25,93,820 रुपये बरामद किए। मुलजिमीन में 26 साला डी मुरली, 28 साला के परमेश, 38 साला टी सारैया शामिल हैं। నాచారంలో గౌరీశెట్టి జ్యోత్స్నాకి ఈ అమ్మాయి అక్కడ రాఘవేంద్ర నగర్ కాలనీ నాచారంలో ఉంటున్నారు. ఈ అమ్మాయి ఇచ్చిన కంప్లైంట్ ప్రకారంగా వాళ్ళు 27 నాడు మే 27 ఆ డేట్లో వాళ్ళు తిరుపతి వెళ్ళారు. సో తిరుపతి వెళ్ళినప్పుడు ఫస్ట్ నాడు వాళ్ళ టెనెంట్ అరుణ్ అని వాళ్ళకి ఫోన్ చేసి మీ ఇంట్లో దొంగతనం జరిగిన బహుశా డోర్ ఓపెన్ ఉంది అని చెప్పడం జరిగింది. సో ఇమీడియట్లీ వాళ్ళు వాళ్ళ పేరెంట్స్ని ఆ ఇంటికి పంపించి మీరు ఉండండి అక్కడ మనం వస్తాము అని. వాళ్ళు రిటర్న్ వచ్చినప్పుడు మెయిన్ డోర్ అండ్ బెడ్రూమ్ డోర్ అది రెండు ఎవరైనా ఓపెన్ చేసి ఉన్నాయి. తర్వాత బీరువాలో ఉన్న బంగారం, తర్వాత వెండి, తర్వాత కొన్ని క్యాష్ కూడా అక్కడ లేవు అని ఇమీడియట్లీ వాళ్ళు మన నాచారం PS కు కంప్లైంట్ ఇచ్చారు. కంప్లైంట్ ఇచ్చిన తర్వాత ఇమీడియట్ మనము మన CCS పోలీస్ తర్వాత IT సెల్ వాళ్ళని కూడా ఈ కేసులో ఇన్వెస్టిగేషన్, ఎందుకంటే ఇది గ్రేవ్ కేసు కాబట్టి 40 తోళ్ల పైన బంగారం ఉంది అని చెప్పారు అప్పుడు. సో అక్కడ ఉన్న కొన్ని ఆధారాలు, దాంట్లో ఇంపార్టెంట్ అది మనకు ఫుటేజ్ కూడా దొరికింది.
ఈ ఆధారం ప్రకారంగా ఆ టెనెంట్ ఎవరు వాళ్ళు ఇంట్లో ఉంటున్నారు, ఈ ఓనర్ ఇప్పుడు లేవు, దానికి అడ్వాంటేజ్ తీసుకొని స్క్రూ డ్రైవర్తో ఆ మెయిన్ డోర్ తర్వాత బెడ్రూమ్ డోర్ అది ఓపెన్ చేస్తూ తర్వాత ఈ 53.9 తోల బంగారం, 166 గ్రామ్ వెండి అండ్ 1,50,000 ఈ మొత్తం 30,57,380 rupees worth property he has knocked away. So ఈ మొత్తం ప్రాపర్టీ 100% ఆయన దగ్గర ఇప్పుడు రికవర్ చేయడం జరిగింది. ఈ టెనెంట్ ఎవరున్నారు, ఈ అద్దెకి అరుణ్ కుమార్, ఆయనకి కిరాణా జనరల్ స్టోర్ బిజినెస్ ఉంది. ఈ మధ్యలో కొన్ని ఫైనాన్షియల్ లాసెస్ ఆయనకి ఆ లాసెస్ వలన ఈ మధ్యకాలంలో భువనగిర్, బీబీనగర్, గుట్ట, రోడ్డుపల్ ఆ ప్రాంతంలో ఎక్కువ ఈ రాత్రి ఈ సమ్మర్ సీజన్ లో ఎవరు బయట పట్టుకుంటున్నారు అలాంటి లేడీస్ కి చైన్ స్నాచింగ్ తర్వాత ఇంట్లో దొంగతనం ఈ కేసెస్ కొన్ని నమోదైనాయి. మా భువనగిర్ రూరల్, బేబీనగర్, గుట్ట, రోడ్డుపల్, రాజాపేట, కందపూర్, యాచారం, ఆదిపట్ల ఈ 8 పోలీస్ స్టేషన్లో ఇలాంటి కేసెస్ నమోదైనాయి. సో ఈ కేసెస్ సంబంధి ఎస్పెషలీ సిసిఎస్ తర్వాత మన లోకల్ లా అండ్ ఆర్డర్ పోలీస్, ఐటీ సెల్, ఈవెన్ ఎస్ఓటీ ఆల్సో అందరం ఎట్లయినా ఈ గ్యాంగ్ ని పట్టుకోవాలి ఆ ఉద్దేశంతో. आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। खलील अरसे में तेलंगाना की तरक्की मुल्क भर की दीगर रियासतों के लिए मिसाल, रियासती वजीर केटीआर ने महकमे सनत की सालाना रिपोर्ट जारी की। हजरत ख्वाजा अजमेरी की शान में गुस्ताखी करने वाले रुकन असम्बली गोशा महल राजा सिंह के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सूफी सजादा नशीन कौंसिल ने डीसीपी साउथ से मुलाकात करते हुए शिकायत दर्ज करवाई। मजलिसी अराकीन असम्बली मुतालिका हल्कों में हुकूमती प्रोग्राम पटना प्रगति में मसरूफ, डिवीजन की साफ सफाई और तरक्याती कामों की तकमील के लिए खुसूसी मुहिम। सरक़े और रहज़नी की वारदातों में मुलविस मुलज़िमीन गिरफ्तार, रच्चाकुंडा पुलिस की कार्रवाई। कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा की मीडिया कॉन्फ्रेंस। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।